CPM کوپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے سیکرٹری ہیں، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اپنے تاثرات بیان کریں۔ جناب ممبران ریلیف کمیٹی اور حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ جس دن یہ اس قدر ہارٹ فیلٹ قسم کا سانحہ ہمارے ملک پاکستان میں آیا، ہر آنکھ میرے خیال میں اس دن اشکبار تھی۔ جوں میڈیا نے اس کی گریوٹی بتائی اور ہم نے دیکھی، اسی طرح سے ہمارے دل مغموم ہوتے گئے، اور ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح سے میں اڑ کر وہاں پہنچوں۔ میں یہ امپریشن اس لیے دے رہا ہوں کہ جن محفلوں میں کہیں اگر لیڈیز بھی ہیں، وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ دل یہ چاہتا ہے کہ وہاں اڑ کر جا کر ان کی ہم ہیلپ کریں جو اس وقت مصیبت میں اور مشکل میں ہیں۔ بچوں کے سکول کو دیکھ کر، جہاں ہمارے اپنے چھوٹے بہن بھائی بچے اس طرح سے پھنسے کہ وہ نکل نہ سکے، وہ پھول جو ہم بالکل کچھ بننے سے پہلے ہی مرجھا گئے اور وہاں ختم ہو گئے، ان کے لیے ہمارے دل روتے تھے۔ فوری طور پر وہاں ہم نے اپنے ہاؤسنگ سوسائٹی میں، جو کہ اس وقت ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے، یہی سوچا کہ فوری طور پر جو بھی ریلیف جس علاقے میں بھی دے سکتے ہیں پہنچائی جائے۔ نادر خان صاحب اس وقت اسلام آباد تھے، فوری طور پر یہاں بٹل آ گئے۔ بٹل کا اخبار میں ہم نے پہلے دن پڑھا۔ ظاہر ہے میں اتفاق سے 2 مہینے پیشتر یہاں گیا تھا، فیملی کو لے کر ہم سیر کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہمیں ایک ایک اس کے اچھے نظارے اور اچھے چیزیں نظر سے گزرتی گئیں، اور ہم افسوس کرتے گئے کہ اتنے اچھے علاقے کو اس طرح سے ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے اپنے ایک سلسلے اور اپنا روئی لا کر دیتے رہے۔ اس انداز سے ایک یہ سارا کچھ میں سمجھتا ہوں موبلائز ہوا کہ اس کو دیکھ کر ہمیں بہت ہمت ہے اور بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے پاکستان کے لوگ اور جہاں جہاں جو جس کے بہرحال قربت دار ہیں، وہاں ہمارے یہ پیغام پہنچے گے بھی، اور وہاں سے ہم اسی طرح سے مدد یہاں کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جیسے جیسے NGOز آ رہی ہیں، ہم وہاں بھی NGOز کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے، انشاءاللہ اس فاؤنڈیشن کو ہم زیادہ سے زیادہ موبلائز کریں گے، اور جتنا بھی ہیلپ جہاں جہاں، خاص طور پر بٹل، کیونکہ نادر خان صاحب ہمارے دوست، ظاہر ہے وہ کہتے ہیں چیریٹی شوڈ بگن فرام ہوم، تو وہیں سے سلسلہ یہ ہم نے شروع کیا ہے، اور کوشش کریں گے جہاں تک ہمیں یہ مدد پہنچا سکتے ہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے۔ ہم ان دعاؤں کے ساتھ میں اب میری ریکویسٹ ہوگی انجینئر چودھری عبدالرشید صاحب سے، جو کہ ہمارے چیئرمین ہیں اسلام آباد سینٹر کے، اور چیف انجینئر ہیں پاک PWD۔ میرے عزیز دوستوں نے میرا خیال ہے اتنی ڈیٹیل سے بات کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر پاکستانی کا دل آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور رات کو بھی لوگ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کی جگہ ہم ہوتے تو ہمارا بھی وہی حشر ہوتا جو آپ کا۔ تو اس لحاظ سے اس میں بہت ویکنیس ہے، بہت ہی مدد کے لیے لوگ بےتاب ہیں، آتے ہیں، اور انشاءاللہ اور فردر آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میری ذات کا تعلق ہے، ہمارے دوستوں نے مل کر اسلام آباد میں یہ ایک اسی قسم کی سوسائٹی قائم کی ہے، اور اس وقت کے بعد سے جس میں اچھے اچھے سائنٹسٹ شامل ہیں، ہمارے ساتھ ریکٹر اسلامک یونیورسٹی کے شامل ہیں، اور سینئر انجینئرز ڈاکٹر شامل ہیں۔ اس میں ہم نے ایڈ پہلے دن سے ہی کچھ 10 ٹرک بٹ گرام میں کچھ ہمارا بیس کیمپ وہاں کیمپ کیا ہے اور وہاں جا رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ اسلام آباد میں جتنی بھی یہ خیمہ بستیاں قائم کی ہیں، اس کے لیے ہم نے سروے کیا ہے، اور ہم لانگ ٹرم پلاننگ میں یہ ایک بات کر رہے ہیں کہ جتنے ہمارے بچے ہیں جو میٹرک ہے یا اس کے لگ بھگ ہے، ان کے لیے کوئی ٹیکنیکل نو ہاؤ کا ادارہ قائم کریں۔ وہ بہت اچھے پروسیس میں ہے۔ اس وقت ان کو فارمز ہم نے کر کے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، ان کے اب کر رہے ہیں۔ اسلامک یونیورسٹی اس میں ہماری ہر طریقے کی اکاموڈیشن کی، ٹیچنگ کی، اور وہاں ٹیکنیکل ادارے ان کے ساتھ شامل ہو کے یہ بہت جلدی کورسز، اسی طرح لیڈیز کے لیے ان کی یعنی اسکلڈ لیڈیز کو کہ اپنی کچھ نہ کچھ سلائی کڑھائی جو بھی ان کے شعبے ہیں اس میں کر سکے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قوم میں ہر جگہ ہر لیول پہ ہی اپنے اپنے طور پہ کوشش ہو رہی ہے کہ جس طرح بھی ہو یہ اپنے بھائیوں کی مدد کی جائے۔ اب میں گزارش کروں گا خالد بشیر صاحب سے،
जो कि रोटरी क्लब के बड़े मतलब हमारे मेंबर भी हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी हमारे मेंबर हैं। तो इन्होंने ऑलरेडी भी हमारी बहुत हेल्प की, हमारे पर्सनल दोस्त हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये अपने तसव्वुरात बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आजकल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स का भी प्रेसिडेंट हूँ और गुबानी साहब ने रोटरी क्लब का हवाला भी दिया। मुझे इंस्टीट्यूट ने इंजीनियर्स ने केमिकल इंजीनियर्स ने भी ये रिक्वेस्ट की थी कि आप वहाँ जाकर असेसमेंट करें कि क्या हालात हैं, किस तरह से। दोस्तों, ये जो मौका होता है, इस किस्म की जो आफत आती है, इसके दो पहलू होते हैं। अल्लाह ताला ने आज तक जितने भी आफतें आई हैं, ज़्यादातर नेक बंदों पे आई हैं। नबियों की हिस्ट्री पढ़ें, तारीख पढ़ें, तो बहुत ज़्यादा वो इन आजमाइशों से गुजरे हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जितने भी लोग गुजरे हैं उन्होंने बड़ी हिम्मत से इनका मुकाबला किया। और जब भी ये आफत आती है और फिर उससे गुजरते हैं तो अच्छे तरीके से, आसान तरीके से उन्होंने दुनिया को और तारीख को चलाया। आप ये ना समझें कि ये आफत एक ख़ास इलाके पे या ख़ास लोगों पर जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, ये आप लोगों की एक आजमाइश है, हमारी एक आजमाइश है, कौम की एक आजमाइश है, मुसलमानों की आजमाइश है, पाकिस्तान की आजमाइश है। और हो सकता है और लगता है कि इंशाअल्लाह हम बेहतर हालात से गुजरेंगे, हम बेहतर कौम बन के उभरेंगे। जो पाकिस्तान के लोगों ने मुख्तलिफ शहरों से जिस तरह से यहाँ लोग उमंड आए हैं, जिस तरह से लोग आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, जिस तरह लेकर हमदर्दी दिखा रहे हैं, तो ये एक ऐसा आने वाला वक्त मुस्तकबिल में जो हमें नज़र आ रहा है, इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की एक नई तारीख निकलेगी, उभरेगी और नई तारीख से ये सारे हरूफ लिखे जाएंगे। और आप लोग यहाँ पर जो इससे अफेक्ट हुए हैं, जिस तरह आप लोगों को ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आज़माइश में डाला गया और जिस तरह से आप हिम्मत से काम ले रहे हैं, ये इंशाअल्लाह सुनहरी रूप से लिखा जाएगा। आपकी हिम्मत और आपकी ये जितनी कोशिश है और इससे जो एक जज्बा छोटे बड़े गरीब अमीर सब इकट्ठे होकर आप सब लोग कर रहे हैं, ये पहले शायद ही कभी इस इलाके में या किसी पाकिस्तान के किसी इलाके में देखा गया। जहाँ तक इमदाद का ताल्लुक है, कहने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी ड्यूटी है, मुसलमान की हैसियत से, दोस्ती की हैसियत से, बरादरी की हैसियत से, इंसानियत की हैसियत से कि यहाँ हम आएँ, आप लोगों की मदद करें। जैसे कुछ दोस्तों ने यहाँ फरमाया कि हर किसी के साथ हो सकता है, हर आदमी इस आज़माइश से गुजर सकता है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम आप लोगों का जितना भी मुमकिन हो सके, ना तो वो हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, ना ही हम आपसे कुछ ये इस तरह से लें कि जी हमारा ये एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है। नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ है। हम इस वक्त अल्लाह ताला के फजल करम से एक अच्छी जगह पे हैं, अच्छे स्टेटस पे हैं, अच्छे हम अपने पूरे ताल्लुकात, अपने पूरी इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे और करना चाहिए ताकि आप लोगों के, सब लोगों के यहाँ के उनकी इमदाद भी हो सके, हिम्मत भी हो सके। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इसमें इंजीनियर्स भी हैं, इसमें बहुत सारे लोग अपनी अपनी जगह पर पाकिस्तान के अंदर आप लोगों के लिए सोच भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। जहाँ तक ये कि क्या कर सकते हैं वो अभी हम लोग, जैसे हम लोग आए इसी तरह से NGOs भी आ रहे हैं, रोटरी वाले भी आ रहे हैं, IEP वाले भी आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। इंशाअल्लाह अभी आपका कड़ा वक्त और आना है। अभी तो आप वक्त से गुजर रहे हैं, अभी वो वक्त है जहाँ आप संभल रहे हैं। अभी तो आप लोगों ने रिहेबिलिटेशन आपका जो काम है, सबसे बड़ा काम तो वो है कि इनको किस तरह से आपने करना है। आपकी ये जो कमेटी है, यकीन जानिए बहुत काबिल तहसीन है। जिस तरह से ऑर्गेनाइज की गई है, नादिर खान साहब अपने दोस्तों से मिलकर उन्हें की है, यही एक तरीका है कि इसको आप बेहतर तरीके से, किस तरीके से इस एरिया को जहाँ से आप इनको कंट्रोल कर रहे हैं, आइंदा किस तरह से इनको कर सकते हैं और किस तरह से आप हमें लोगों को, NGOs को या जो भी लोग गवर्नमेंट को किस तरह से आप हमें गाइड कर सकते हैं। हम उस तरह से आप हम लोगों को इस्तेमाल करें, हमारी एक्सपर्टीज को, हमारे प्रोफेशंस को, हमारे पैसे को, हमारी हिम्मत को आप कैसे इस्तेमाल करें। यही हमारा यहाँ आने का मकसद है। आप बिल्कुल महसूस न करें, अल्लाह ताला के फजल करम से आप अकेले हैं, हम सब आपके साथ हैं। आपको जो जो ज़रूरतें हैं हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि उसी तरह से आपकी तवक्कुआत पूरा उतरें। अपना फ़र्ज समझते हुए हमदर्दी के तौर पर मुस्लिम की हैसियत से, पाकिस्तानी होने के हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी गुजारिश है अपने दोस्त इंजीनियर ज़फ़र इकबाल साहब, एक्स चीफ इंजीनियर CMW और हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं IEP कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से। खान साहब ने जो यहाँ पर काम का बेड़ा उठाया है, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे और ये करें। और ये जो हमें जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और इन्होंने
जो हमसे हुआ वो हमने किया। अल्लाह ताला आप लोगों को भी हिम्मत दे। और मैं तो कहता हूँ कि ये एक अल्लाह ताला ने ऐसा इम्तिहान हमारी कौम का लिया है और उसमें कौम ऐसी उठी है कि इसने दिखाया कि इनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर इसको पोटेंशियल को सही चैनलाइज कर जाए और जैसे खान साहब ने छोटे लेवल पर ही शुरू किया है तो ये कौम एक अपना मुकाम बनाएगी और जो हमारी इमेज पहले खराब हुई थी वो मेरे ख्याल से बड़ी ठीक होगी। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा जो आप कर रहे हैं।